नमस्कार, हाउस हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। 16वीं लोकसभा के बजट सत्र का आगाज 23 फरवरी को हुआ, जिसमें संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया। बजट सत्र का आज दूसरा दिन था, जिसमें संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। लोकसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और साथ ही JNU और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की घटनाओं के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थानों में हुई हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर भी सदन में चर्चा हुई। हाउस हाइलाइट्स की शुरुआत प्रश्नकाल से करते हैं। प्रश्नकाल में सबसे पहला सवाल बीजेपी से सांसद प्रहलाद जोशी ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से सवाल किया रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी के संदर्भ में। इसके सवाल में और इसके जवाब में क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं। That whatever he has said here last year also, for the doubling Karnataka, he has provided the highest budget. I am really thankful for Honorable Minister. This is the first time that the highest budget has been provided for the doubling in Karnataka. But the report of the Committee on Mobilization of the Resource for Major Railway Projects and the Restructuring of Railway Ministry, Railway Board has, in order to improve the private participation, the Vivek Rai Committee has recommended non-discriminatory access to the both Indian Railways and to the private operator should be given over new tracks presently being built as the part of two freight corridors by Dedicated Freight Corridor Corporation of India, DFCCIL. Would the ministry thus be willing to establish a separate autonomous DFCCIL who is separate from the Indian Railways for such purpose? This is my question to the Honorable Minister. Madam, there are various options available. The idea is to increase the freight movement of railways. This will be the larger interest of the country, larger interest of the customers at large, also to reduce the cost of transportation and to also increase the speed of transportation, which is extremely important. So we'll explore all possible means. This is one of the options. I thank Honorable Member for putting it across. और प्रश्नकाल में ही महाराष्ट्र बारामती से सांसद सुप्रिया सूले ने सवाल किया वाईफाई और BSNL से जुड़े मुद्दे पर। इसमें सुप्रिया सूले ने रविशंकर प्रसाद से सवाल किया कि संसद में ही जब BSNL का 3G और 4G ठीक से नहीं चलता है तो पूरे देश में BSNL की क्या स्थिति होगी। इसका जवाब मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। Honorable, you're talking about the Wi-Fi. The Wi-Fi access doesn't seem to be as effective. In your reply, you have said that Delhi has been given to a private operator. But your government constantly talks about Digital India. It's unfortunate to share, but I think all my colleagues will agree with me. 3G also doesn't effectively work in Indian Parliament. It's so hard for us to use power here. So if you could intervene and we get at least this hotspot to start with Wi-Fi and then effectively use it in the country, especially for the students in universities, would be a good service, I think, on all our behalf. Thank you. I must clarify, Honourable Member, whom I have personal respect a lot, has mentioned about the Parliament situation. Parliament, I am myself monitoring. Honourable Speaker is kind enough to grant all the cooperation. But about Parliament, I understand three things. One is the heritage status of this building. The second is the security issue. I was very keen to install in-building solution in the entire Parliament. A view came from the Parliament office that we have to take a call about the classical status of this building. Therefore, we are making provision for mobile towers. One has been installed, two are in process. One tower has been installed on the library building, which has become operational. Therefore, I am personally a part of the department monitoring improvement. As regards my honorable friend from Bengal, my eminent lawyer friend, I can tell you proper optical fiber is also being installed broadband at all the houses of members of parliament. Lot have become operational, lot are in the process. Yes. Wi-Fi have also come. So please listen. Mr. Venugopal, I know Kerala is doing. Please listen. Please listen. Listen. I am replying. If you have got any specific problem, I will personally look into it. Lot of MPs. Please. Yes. Madam, Yes. no, just a minute. Madam, just a minute. Don't answer to such questions. Please, I have not allowed those questions. Then why you are answering? You answer only to. I can only tell my learned friend sitting that side. I am willing to have a debate on BSNL as to what happened during their government and what we have done. I am willing to have a debate, clear debate. Therefore, improvement is there. A lot will be done.
बीएसएनएल और वाईफाई के संदर्भ में ही लोकसभा सदस्य बैजयंत पांडा ने भी सवाल किया। उनका कहना था कि बीएसएनएल के खराब नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की समस्या से बीएसएनएल के उपभोक्ता परेशान हैं। इसके लिए मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। Madam, it is a fact that in India, the spectrum available, not just to BSNL, but to any of the telecom companies, is limited compared to other countries because we have spectrum allotted to the armed forces, which are not yet available for commercial use, and so on and so forth. The irony is this, madam. The irony is that Wi-Fi is not based on licensed spectrum. It is based on unlicensed spectrum, so it can be easily spread without the blockages that we are facing in spectrum, which is leading to call drops and which is slowing up our penetration of internet. My question to the Honorable Minister is this. BSNL has a tremendous advantage of having large quantity of fiber optics throughout the country. It is not dependent on the 2.5 gigahertz spectrum. With the fiber optic connectivity in cities and in villages, they can put up Wi-Fi without any interruption, without any problem, and that is the way to very quickly spread, and this is an advantage that BSNL has over many of the private competitors. My question to the Honorable Minister is, I'm glad that you are going to expand these 300 Wi-Fi hotspots to 2,500. It should be 25,000. It should be 250,000 Wi-Fi hotspots. But the call drop problem will not get solved unless certain policy blockages which are self-created are removed. My question is this. We are one of the few countries, no country has a blockage on internet voice telephony being allowed to connect to landlines and being allowed to connect to mobiles. India is one of the few countries which blocks it. And this is an area where you can bypass the call drop problem by allowing anybody to access Wi-Fi and using that to make calls to also landlines and also to mobiles. BSNL has a tremendous advantage in this. Will the Honorable Minister agree to bring our policy in line with most of the countries in the world so that voice telephony interconnectivity between internet voice, landlines and mobiles, that self-created policy blockage is removed? Madam, as far as the policy part is concerned, I'll just come to your specific query. But regard optimum use of spectrum, it is our government which came with the spectrum sharing, a spectrum trading policy pending for the last 10 years for optimum utilization, for liberalization, for harmonization. Therefore, our government took the stand and the cabinet approved the defense band so that the defense band entering into our band is resolved for the first time. All the policy initiative we have taken. Now, if further more is required, we'll do it again. BSNL will take a call as far as the optimum use of their whole fiber is concerned, which they are doing, which I said. And when I said 2,500, it is only by this year. It doesn't mean it's going to end this year. It is going to expand further. They will surely, I will convey your advice to them. Regarding your specific of the internet voice telephony is concerned, it also impinges upon, as the Honorable Experienced Member would know, on regulatory issues, where the view of TRAI, where the view of the entire other operators who are having license to give voice services will have to be taken into account. It is not simply a policy issue simpliciter. It is also a larger issue impinging upon the entire licensing conditions of those operators, the TRAI regulations. Surely, I take your suggestion on board and I will convey, let the TRAI take a call on it. साथ ही अब जूनागढ़ बीजेपी से सांसद राजेश भाई नारायण भाई ने स्किल डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दे पर सवाल करते हुए कहा कि देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं, क्या ऐसे कॉलेजों को स्किल डेवलपमेंट सेंटर से जोड़ा जाएगा? इसका जवाब राजीव प्रताप रूडी ने दिया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अच्छा रिप्लाई मिला है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम कुछ नए बदलाव के साथ, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मेरी जानकारी के मुताबिक देश में हर वर्ष इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की 4.5 लाख सीटें खाली रहती हैं। इन सीटों का जो अनयूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या भारत सरकार इस अनयूज इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए करने का कोई विचार करती है या नहीं? स्पीकर मैम, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आज इस देश में लगभग औसतन 17 लाख के आसपास इंजीनियरिंग सीट्स हैं
और आज इस देश में इंजीनियरिंग सीट्स में लगभग 17 लाख इंजीनियरिंग सीट्स में लगभग 8 लाख इंजीनियरिंग सीट्स खाली हैं। इसका मतलब यह है कि लोग इस देश में इंजीनियर्स को बहाल नहीं कर पा रहे हैं और लोग इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं जा रहे हैं। आपने ये जो कहा है, और बहुत सारे इस देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं या बंद होने के कगार पर हैं उसमें, क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा है। आज लगभग 17% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयबल हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस देश में जो स्किलिंग का काम प्राथमिक तौर पर होना चाहिए, हमने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आदि, इसीलिए हम लोगों ने अपने तरफ से प्रस्ताव रखा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस हायर एजुकेशन में है, AICT के अंतर्गत है। फिर भी हम लोगों ने देश में और आपके भी संसदीय क्षेत्र में ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके पास भवन है, लैब है, फैकल्टी है, हॉस्टल्स है, साइकिल शेड है, और वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से अगर ये प्रस्ताव आता है, और इसी हफ्ते 27 तारीख को देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ जो बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर हैं, उनको स्किल सेंटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के एस्पिरेशनली लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाके स्किलिंग कर सके, इसका हम बैठक रख रहे हैं महोदय, ताकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बंद हो चुके हैं उनको कौशल विकास केंद्र के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है कि ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों रुपया खर्च करके खाली पड़े हैं, उनको हम लोग कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित कर सके। ये प्रस्ताव माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है, और हम लोगों के मन में भी ये विचार है, इस दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने भारत के विभिन्न इलाकों में पोस्ट ऑफिस की स्थिति से जुड़े समस्याओं पर सवाल किया, जिसका जवाब रविशंकर प्रसाद ने दिया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। डाकघरों में कोर बैंकिंग की सुविधा से निश्चित रूप से ग्रामीणों को लाभ मिला है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में 1,30,000 ग्रामीण डाक कार्यालयों को इस कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कहा है, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जो बैंकिंग की सुविधा से महरूम हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपना खाता खुलाना चाहते हैं, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे नरेगा हो, चाहे इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे उन गाँवों को भी क्या आने वाले समय में इन डाकघरों के से जोड़ा जाएगा। साथ ही नेटवर्किंग के कारण, अकाउंट कोर बैंकिंग के कारण कई अकाउंट खुले हैं, लेकिन सैफी कंपनी ने BSNL से जो लाइनें हायर की है, वो आज उसके कारण कम होने के कारण, अकाउंट बढ़ने के कारण वो सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो क्या मंत्री महोदय उन लाइनों को और ज़्यादा बढ़ा के उन बैंकिंग सुविधाओं को दुरुस्त करने का कोई योजना बनाई है? अध्यक्ष महोदय, हमारे पोस्टल विभाग में 1,55,000 डाकघर हैं, जिसमें लगभग 1,30,000 ग्रामीण हैं, जिन्हें हम ग्राम सेवक GDS के रूप में मानते हैं, और हमारे 25,297 हमारे विभागीय पोस्ट ऑफिस हैं। ये सभी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क पर हैं। इसमें बैंकिंग के लिए हमने एक पहल चलाई। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें 17,057 कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर आ गए हैं। और आज मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे पोस्टल विभाग के पोस्ट ऑफिसेज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में हिंदुस्तान में सबसे अधिक हैं, सारे बैंकों से भी अधिक हैं। ये हमारे सरकार की एक उपलब्धि स्पष्ट रूप से हुई है, जो हमारी सरकार के आने के बाद हुई है। कोर बैंक सॉल्यूशन से क्या होगा? फास्ट बैंकिंग होगा, ई-बैंकिंग होगा, बाकी सुविधाएं होंगी। हमने एक आपको बात बताना चाहता हूं, आपने बहुत माननीय सदस्य से सवाल किया कि हम बाकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको हम एक हैंडहेल्ड डिवाइस दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो सारी ये सेवाएं दे सकें जो कंप्यूटर से लिंक्ड होंगी। आने वाले मार्च तक हम लगभग 30,000 ग्राम डाक सेवकों को दे रहे हैं, और 2017 तक हम सारे 1,30,000 ग्रामीण डाक सेवकों को भी कंप्यूटर हैंडल डिवाइस दे देंगे, ताकि वो भी इसके साथ काम कर सकें। ये हमने दूसरा काम किया है। तीसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमने पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट को ई-कॉमर्स में, बाकी में जोड़ा है। आज हमारे स्पीड पोस्ट सुधरे हैं और उनके टोटल रेवेन्यू में 12% की वृद्धि हुई है। और ई-कॉमर्स में डिलीवरी में सक्रियता से आने के बाद पोस्टल विभाग का रेवेन्यू 13-14 में 2% कम था, 14-15 में 45% आगे बढ़ा, और 15-16 में जनवरी तक 120% आगे बढ़ा है। ये आपको हम बताना चाहते हैं, ये बदलाव किया है। पोस्टल विभाग में हम पेमेंट बैंक लाने जा रहे हैं, अगले मार्च से शुरू होगा। और हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि पोस्टल विभाग का सक्रिय सहभाग डिजिटल इंडिया में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में होना चाहिए। गांव-गांव तक हम पहुंचेंगे।
जो आपने बात कही नेटवर्क के बारे में, मैंने जो पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, तो हमने विभाग को निर्देश दिया है कि सारे ग्रामीण पोस्ट ऑफिसेज को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में प्राथमिकता के स्तर पर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। यह भी हमने फैसला किया है। और जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है, हम 35,000 नए वाईफाई आने वाले 3-4 वर्षों में लाने वाले हैं। तो इस सब के माध्यम से डाक सेवाओं का इन्वॉल्वमेंट और होगा, विस्तार और होगा विकास के मार्ग। आदर्श रेलवे स्टेशन योजना के संदर्भ में बिहार बेगूसराय से बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने मध्य रेलवे हाजीपुर स्टेशन की बदहाली से सभी को अवगत कराया। उनका कहना था कि जितना पैसा रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए आवंटित होता है, उतना ठीक तरह से उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता, जिसका जवाब रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सरकार ने एक बड़ा ही विस्तृत जवाब दिया है और उस जवाब के आलोक में मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आदर्श रेलवे स्टेशन योजना का जो कार्यान्वयन है, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इनका उपस्थापन है, व्यवस्थापन में बहुत बड़ी खाई है। उस खाई को पाटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है, और विशेषकर पूर्व मध्य जो रेलवे जोन है हाजीपुर, उसमें जिसके बारे में कहा गया है कि भारत का जो पूर्वी और उत्तरी हिस्सा है वो ज्ञान में तो बढ़ा चढ़ा है, लेकिन लक्ष्मी में बड़ा पिछड़ा हुआ है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे जोन जो है हाजीपुर, उसमें जो उपस्थापन आपने किया है बजट का और व्यवस्थापन जो आपके द्वारा हो रहा है, उसमें बहुत बड़ी खाई है। क्या ये खाई आपकी कल्पना की उपज है? क्या ये खाई आपकी गतिशीलता का द्योतक है? हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इस खाई को पाटने के लिए आपने क्या कदम उठाया। मैडम, ये बिल्कुल सही है कि हाजीपुर में हमारे बहुत अच्छे साथी है और उस समय के रेल मंत्री रामविलास पासवान जी ने उसका ऐलान करके उसका स्थापना की गई थी। अभी हम ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस परियोजना को कार्यान्वित करके आपकी जो खाई है उसको आगे लाकर उसको अच्छी तरह से बनाकर हम उसको लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके जैसे बड़े सांसद खाई में रहे, उसको ऊपर जरूर लाके हम अच्छी तरह से इसको कार्यान्वित करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और आप तो हमारे अच्छे साथी भी है, कार्यान्वित करें। आपके जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि ये योजना जब से बनी उस समय से हमने पिछले बजट में 2013-14 में इस योजना के लिए 8 करोड़ 57 लाख रुपए के लागत दी थी। पिछले साल में हमने 50% बढ़ाकर 12 करोड़ की। आपने देखा होगा कि ऐसे देश में बहुत सारे स्थानक है कि जहां पर बहुत कम ट्रेन भी जाती है, लोग भी परेशान होते हैं। लेकिन मेरे जैसे उम्र के लोग हैं, बड़े बुढ़ापे वाले, उनके लिए सहायता करने के लिए भी हमने एस्केलेटर, लिफ्ट जैसे परियोजनाओं का भी आयोजन ऐसे स्थानकों पर किया है। मैं चाहता हूं कि आपके स्थानकों पर भी हम इसी तरह की योजना जरूर लागू करेंगे। बहुत सारे स्टेशन डेवलप करने के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही 1999 से, लेकिन मैं समझता हूं उसको आगे लाने की आवश्यकता है। धन की भी जरूरत है, धन आएगा तो काम भी हो पाएगा, लेकिन हम इसके लिए जन और धन दोनों को साथ में जोड़कर किस तरह से इस कार्यान्वित करें उसकी अब जरूर कोशिश करेंगे। एक साहब को कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे कुछ मित्रों ने केरला के बारे में वेणुगोपाल जी ने पूछा था, स्टेशन के लिए ही नहीं, लेकिन 2008-9 में केरला के लिए 349.80 crores were given. In 13-14, that had come down to 265.41 crores. In 15-16, we increased it to 1,050 crores for Kerala alone. That is for your information. हाउस हाइलाइट्स में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई धन्यवाद प्रस्ताव की बातचीत में क्या कुछ हुआ आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हाउस हाइलाइट्स और अब हाउस हाइलाइट्स में आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हुई बातचीत की कुछ नज़ारे, जिसमें मीनाक्षी लेखी ने भारत की आर्थिक नीतियों और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में अपने वक्तव्य प्रस्तुत किया।
आदरणीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में देश हित को लेकर अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए एवं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और हम सबको उन्हें सुनने का मौका मिला। To begin from the beginning, Honorable Speaker, ma'am, India for long, सदन में शांति रखे सब लोग। Yes. India for long was at the cusp of reaching the pinnacle of global leadership as a major epicenter of economic, military and soft power. Yet, years became decades and that did not happen. In spite of all advantages in the form of democracy, demography and demand, somewhere India remained mired in its own problems. The world kept waiting for us, but we were too reluctant to board the bus. It was not pacifism, but also some sort of fascination for some illusionary socialistic model that brought India down in the early 90s. The beginning of the new millennium did offer many opportunities and major opportunities for India to take the pole position. Global politics was changing, Asia was becoming the hub of manufacturing, and China was racing past the West. Once again, India was poised. The telecom revolution, the golden quadrilateral projects were some projects which did shape up India to an extent, yet for decades since then, India did not board the bus once again. Policy paralysis, rampant corruption, appeasement politics, nepotism, red tapeism, and giving priority to populistic measures rather than the real welfare issues became the policy of this country, and which put India in a very poor light, and the future looked really bleak. When Shri Narendra Modi's government took over the mantle, India was known more for corruption than anything else. The 2G scam, CWG scam, coal scam, and the list of scams just goes on. And that became the talking point for the world. Investors were shying away from investing in India. Modernization of armed forces was pending for a decade. There was lack of optimism both within the country, inside the country, and outside the country. It was then the Narendra Modi government emerged. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण के दौरान संसद में गतिरोध पर चिंता जाहिर की थी। इसी पर संज्ञान लेते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सदन में गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। So I would like to start by thanking the people of India who created history in 2014 by voting in a majority government after a long period of almost 3 decades, and that too giving us a leadership of a Prime Minister who has personally faced the hardship of being born in a poor family and has had to face the challenges throughout what today probably in our country millions of people and poor people are facing today. And I think the fact that despite all odds, despite all challenges, by the sheer strength of his hard work, his dedication, his commitment, he has risen to the post of leading this entire nation to the future. I think the credit goes to the people of India to have recognized his true value and his true strengths. Madam, we have a leader today who for the last 20 months has probably worked more than 18 hours every day without a break. I don't think there is anybody else in this house who can take credit of that we can work 18 hours a day for 20 months at a stretch without a break. And I think
this single-minded dedication, focus of his to transform the way our country is perceived in the world, to transform the way a country delivers to its people, and most importantly, transform the way that this country has been working till now, goes to the credit of this Prime Minister. It makes me proud to say that today our leader is a leader who has a vision based on experience. He has the perseverance and the dedication to continue to work towards his goals despite all odds and despite all the hurdles and all the roadblocks being created. And I think for the development of this nation, it is probably historic that where one individual is working day and night for the progress of the country, probably for the first time in history, a new government has come into power, and out of the 6 sessions of parliament which has taken place under a new government, or more than 3 have been a washout due to the disruptive politics of the people I will not mention, but the entire world knows who's in the well of the house and who's sitting in their seats trying to conduct some business. Which party you know and the country knows, I will not go into that. After 10 long years of a sluggish, stagnant economy reeling under policy paralysis, corruption, scam after scam, long years of this, where the entire world had given up on this country, I am proud to say that in 20 months, this has been changed around. And I think the credit of this goes yet again to the leader who has traveled all across the globe to increase the confidence of the world in this country. खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने देश के विकास में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामकाज का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कोल स्पेक्ट्रम का उदाहरण देते हुए कहा कि कोल स्पेक्ट्रम के बदले मोदी सरकार ने सरकारी खजाने में 3,30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाकों की सड़कों के विकास का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि 36,000 किलोमीटर की सड़कें केंद्र सरकार के कार्यकाल में बनी हैं। कोयलों में 3,30,000 करोड़, 3.3 लाख करोड़, और स्पेक्ट्रम में 1,10,000 करोड़ 20 महीनों में हमारी सरकार ने देश के खजाने में भरा है। भर के दिया, जो ये भर के कहां ले जाते थे। अब ये जो पैसों से जो देश का खजाना भरा जा रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस खजाने से इस देश की प्रगति को आगे ले जाने के लिए ये सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। और मैं ऐसे माइलस्टोन्स बताना चाहूंगी आपके द्वारा सदन को, जो माइलस्टोन सारे आंकड़े हैं, ये मैं नहीं बना सकती, ये नहीं निकाल सकते, लेकिन ये हकीकत है। सब पिछले 20 महीनों में केवल 8,000 किलोमीटर हाईवेज की कंस्ट्रक्शन 2014-15, जो 125% की इंक्रीज है इनके समय से। 125% सिर्फ 20 महीनों में, ये भी कर सकते थे, वो तो आपके बनाए हुए हैं। जे हम रूरल सड़कों की बात करें तो गांव में सड़कें बनाने का काम जो ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया, 36,000 किलोमीटर रूरल सड़कें जो इनकी सरकार से केवल 20 महीने में, साल भर में 11,000 किलोमीटर और हमारी सरकार ने करने का काम किया है। जो रेलवेज के ब्रॉड गेज कन्वर्जन है 65% उसमें इंक्रीज हुई है सर। और हाईएस्ट एवर जो बिजली की जनरेशन, आज गांव के लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हमारी सड़क बने, हमें घर मिले, हमें बिजली मिले। सब मुझे मान है कि 20 महीनों के अंदर 2015 में हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा बिजली की जनरेशन इस सरकार ने करके दी। ये भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया। हमारी सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केवल 20 महीनों में हमने दुगनी भी कर दी और कीमतें भी सोलर एनर्जी के उसके टैरिफ्स भी घटा दिए। ये देन इस सरकार की है। सर जी आप देखिए, कोयले के बारे में मैंने आपको बताया कि कितना पैसा हमने खजाने में डाला। जहां मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कोल इंडिया में 9.8% कोल का उनका इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाईएस्ट एवर ग्रोथ कोल सेक्टर में अभी हुआ है। 63% इंक्रीज इन ब्रॉडबैंड यूजर्स। सर ये सब एक ये लेवल्स हैं जो हमने अनप्रेसिडेंटेड, जो आज से पहले कभी हो नहीं सका था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 महीने में करके दिखाया।
जेएनयू और हैदराबाद की घटनाओं के विषय में भी लोकसभा में चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेएनयू मामला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुई रोहित वेमुला की हत्या और पठानकोट हमले के उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा। हर नव वर्ष देश के नागरिकों के लिए एक आशा का किरण होता है, लेकिन पिछले 50 दिनों में जो घटनाएं हमारे देश में घटी हैं, चाहे आतंकवादियों के द्वारा पठानकोट में घुसपैठ करके देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न लगाने की कोशिश की गई, जिस पर इस सरकार की विफलताएं भी उजागर हुई हैं, चाहे एक विश्वविद्यालय में एक मासूम छात्र को आत्महत्या करने के लिए निर्भर इस सरकार के द्वारा किया गया, चाहे दूसरे विश्वविद्यालय में छात्रों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का इल्जाम लगाया गया। आज ये मूल प्रश्न हम सबके सामने है कि सरकार का कर्तव्य क्या है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों का हिफाजत करना और नागरिकों के कल्याण के लिए एक नई सोच विचारधारा अर्जित करना। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर अध्यक्षा महोदय मैं कहूं कि ये सरकार का उत्तरदायित्व तो नहीं बनना चाहिए, ये तो सरकार का धर्म बनना चाहिए। लेकिन पिछले 2 वर्षों में जो हमने देखा है कि एक असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश में, विरोधाभास को कुचलने की हर संभव प्रयास और एक ऐसा वातावरण देश में निर्मित किया गया है जहां हर नागरिक और इंसान अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि केवल राष्ट्र विरोधी नारे लगाना ही देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जेएनयू और हैदराबाद की घटना पर खंडन नहीं कर पा रही है, ठीक से कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही है और जेएनयू के विरोध में इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि जेएनयू के छात्रों ने दादरी के मुद्दे पर आवाज़ उठाई और जेएनयू के छात्रों ने भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर अपने आवाज़ उठाई। ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। आइए देखते हैं। जी आप अध्यक्षा महोदय, उन नारों की हम जितनी आलोचना करें वो कम है, लेकिन केवल नारे देना अपराधीकरण की श्रेणी में नहीं आता और राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। अब मैं सबूत भी दूंगा, अभी मैं सबूत भी दूंगा। अध्यक्षा महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, केदारनाथ सिंह का जजमेंट है। इसी विषय पर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अपना वक्तव्य लोकसभा में दिया। उन्होंने कहा कि मरने से पहले कैप्टन पवन कुमार ने ब्लॉग लिखा था फेसबुक पर कि किसी को आज़ादी चाहिए, किसी को आरक्षण चाहिए, लेकिन हमें केवल रजाई चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी घटनाओं को सहन नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। कैप्टन पवन कुमार मात्र 22 वर्ष आयु, लेकिन जाने से पहले अंतिम लाइन जो लिखकर गए, अपने फेसबुक पर जो लिखा कि किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आज़ादी भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई बस अपनी रज़ाई। सीमा पर बैठा वो नौजवान देश की सेवा कर रहा था और दूसरी ओर लांस नायक हरमन थप्पा जो भारत माँ के लिए अपना जिन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया, उनको पाया गया तो बर्फ़ की रजाई में पाया गया। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी कुर्बानी दी। जो इनके लिए मात्र एक नारा है, एक झंडा है, वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है तो देश का फौजी होता है। इकलौता बेटा था, 22 साल का। बाप के दिल में क्या आई होगी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने टीवी के सामने आकर पूरी दुनिया को कहा मेरा इकलौता बेटा था,
देश के लिए जीना मरना चाहता था, देश के लिए शहीद हुआ है। मुझे उस पर गर्व है, गर्व है, गर्व है। पूरे देश को उसके ऊपर गर्व है मैडम, लेकिन इनके ऊपर शर्म है, क्योंकि आप उनके घर तो नहीं जा पाए, वो भी जेएनयू के मैडम, वो भी जेएनयू की डिग्री उनको मिली थी मैडम, क्योंकि यहाँ पर जेएनयू का नाम लिया गया। अगर जेएनयू की बात यहाँ पर की जा रही है मैडम, तो सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। ये केवल जेएनयू को बदनाम करने का प्रयास किया गया। मैडम, जेएनयू में माओवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले हो सकते हैं, अलगाववादी को समर्थन करने वाले होंगे वहां पर, लेकिन मैडम यही कांग्रेस के नेता मैडम कैप्टन पवन कुमार के घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन देश को तोड़ने वालों के पास जेएनयू में यही चले गए थे। जेएनयू में लगाए गए राष्ट्र विरोधी नारों का जिक्र करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से सवाल किया कि जब जेएनयू में अफजल को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उसके समर्थन में जब नारे लगाए जा रहे थे, तो ऐसे छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे? मैडम, 9 तारीख के वो इश्तिहार बताते हैं और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है देश के सामने कि अफजल गुरु कौन था। और इसमें मैडम ये सवाल आज देश जानना चाहता है, और मैं कांग्रेस अध्यक्षा से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं था? क्या जिसकी शहादत के नाम पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, वहां पर राहुल गांधी उस डीएसयू के लोगों के साथ क्यों खड़े थे? देश सवाल पूछना चाहता है। इस लोकतंत्र पर हमला करने वाले के साथ आपका नौजवान नेता क्यों खड़ा था? इसका जवाब देश पूछना चाहता है, इसका जवाब आपको देना होगा। इस सवाल से आप भाग नहीं सकते। इस पर लिखा है, अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। कौन से अरमान थे अफजल के? कौन है अफजल गुरु? यह देश जानना चाहता है, जिसको फांसी देने के लिए 8 साल तक इंतजार करना पड़ा। केवल उसको फांसी देने के 2014 के चुनाव से पहले आपका बोलने का मौका तय आपको करना है। इसके साथ ही इसी विषय पर लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी, राजेश रंजन, दुष्यंत चौटाला, कौशलेंद्र कुमार और महेश गिरी सहित तमाम सांसदों ने अपने विचार रखे। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जेएनयू और हैदराबाद में हुई घटनाओं पर जवाब दिया। हाउस हाइलाइट्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।